اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور کے بارے میں کہ حضور اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں، اور ذاتی طور پر حضور کا علم ذاتی نہیں ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر خود حضور کو علم حاصل ہو جائے، چاہے وہ غیب کا ہے چاہے حاضر کا ہے، سارا اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اسی طرح حضور کو ذاتی اختیار حاصل نہیں ہے، حضور خود مختار ہیں تو اللہ کی عطا سے ہیں، اپنا ذاتی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کی رضا اور مشیت اور اجازت کے بغیر مداخلت کرنا یہ حضور کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن کہیں پر بھی ایک بھی آیت کسی دوسری آیت کی مخالف اور متضاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اتنا عرصہ نازل ہونے کے باوجود بھی اس میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر علم غیب کا ثبوت ہے وہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے آپ عالم الغیب ہیں، اور جہاں پر علم غیب کی نفی ہے تو وہاں مراد ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر آپ کو علم غیب حاصل نہیں ہے، اور آپ کا علم غیب عطائی ہے ذاتی نہیں ہے، اختیار ہے وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے ذاتی نہیں ہے۔ تو کل کی آیت بھی ساتھ ملاتے ہیں چونکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، مضمون دونوں کا ایک ہے، اس وجہ سے یسألونک عن الساعہ کہ اے حبیب آپ سے وہ قیامت کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر فرما دے گا۔ قیامت کے وقت کا بتانا رسالت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، جیسا کہ تم نے قرار دیا، اور اے یہودیوں تم نے جو اس کا وقت جاننے کا دعویٰ کیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کو مخفی رکھا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے، تو اس وجہ سے یہودی بھی نہیں کہہ سکتے ہم قیامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک خفی عنہا، تو تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہو، یعنی کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس انداز سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو علم غیب جو ہے وہ ذاتی ہے، کہ آپ نے جناب خود اختیار سے اللہ کی عطا کے بغیر آپ نے خوب تحقیق کر رکھی ہو، اس انداز سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو آپ کیا جواب دیجئے؟ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن بہت لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے اخفاء کی حکمت تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض مشائخ اس کی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وقت قیامت کا علم ہے، اور یہ حاصل آیت کے منافی نہیں ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے، تو لہٰذا اس آیت میں جو نفی کی گئی ہے وہ علم غیب ذاتی کی گئی ہے، عطائی کی نہیں کی گئی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو آپ اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں، ذاتی طور پر میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اور مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ چاہے پھر اس کا مجھے اختیار دیا جاتا ہے۔
इल्ला माशा अल्लाह, ये इस्तिस्ना है कि मैं ज़ाती तौर पर अपनी जान का भी इख्तियार नहीं रखता, नफ़ा और नुकसान का, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो फिर मुझे जो मर्ज़ी इख्तियार दे दे, तो फिर जो है वो मामला अलग हो जाता है। इसकी शान नुज़ूल ये है कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी के वक़्त राह में तेज़ हवा चली, जानवर जो है वो भागे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि मदीना तैयबा में रिफ़ा का इंतकाल हो गया है, और ये भी फरमाया कि देखो मेरी ऊँटनी कहाँ है। अब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपनी कौम से कहने लगा, इनका कैसा अजीब हाल है कि मदीना में मरने वाले की तो खबर दे रहे हैं और अपनी ऊँटनी के बारे में पता नहीं है। ये एतराज़ किसने किया था? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने। हुजूर के इल्म गैब पर जब भी एतराज़ होता है तो वो मुनाफिक की तरफ से ही होता है। ये मुनाफिकीन का तरीका है। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी हुजूर के इल्म गैब पर एतराज़ किया था कि वैसे तो मदीना में मरने वालों की खबर दे रहे हैं और अपनी ऊँटनी की जो है वो खबर नहीं है कि वो कहाँ है। और सहाबा का ये क़ीदा नहीं था। सहाबा को जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछा गया तो क्या कहा? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि अल्लाह आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है और रसूलुल्लाह को जो है वो आपके इल्म की नफ़ी की हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह व रसूलुहु आलम। और सहाबा ने इस चीज़ को शिर्क भी नहीं समझा कि अल्लाह भी आलम है, रसूलुल्लाह भी आलम है तो ये शिर्क हो गया, हरगिज़ नहीं। सहाबा का ये तर्ज़ ज़िंदगी था, तर्ज़ कलाम था कि जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो मुनाफिक ने जब ये एतराज़ किया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उसका ये कौल भी मख्फी न रहा। अब्दुल्ला बिन उबई ने ये जो बात की, हुजूर के इस बात की भी खबर हो गई और ये भी पोशीदा न रही। तो हुजूर ने फरमाया, मुनाफिक लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, वो इसी तरह कहते हैं, और मेरी ऊँटनी उस घाटी में है, उसकी नुकेल एक दरख्त में उलझ गई है, चुनाचे जैसा फरमाया था उसी हिसाब से वो ऊँटनी पाई गई कि जब उस घाटी तक पहुँचे, वाक़या ये हुजूर की ऊँटनियाँ वहाँ तशरीफ़ फरमा थी और उसकी नुकेल जो है वो दरख्त में अटकी हुई थी। इस पर जो है ये आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया फिर हुजूर आज तवाज़ो और आजिज़ी भी तो करते हैं अल्लाह की बारगाह में, और हकीकी कामयाबी यही होती है कि इंसान को अल्लाह किसी चीज़ से नवाजे तो वो डींगे मारना ना शुरू करते, बल्कि तवाज़ो और आजिज़ी इख्तियार करे कि ये सारा अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं तो उस काबिल नहीं था। तो हुजूर ने अपने मोज़े के ज़रिए इल्म गैब की, जो अताई इल्म गैब है, उसके इजहार भी कर दिया और ऐलान भी कर दिया कि मैं ज़ाती तौर पर कुछ भी नहीं जानता और मेरा इल्म जो है वो ज़ाती नहीं है, ये अताई है, अल्लाह की अता से है, और जो मेरा इख्तियार है ये भी मेरा ज़ाती नहीं है, अल्लाह की अता से है। इल्ला माशा अल्लाह, मैं अपने नफ़ा नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ मगर जितना अल्लाह चाहे, और वो मालिक हकीकी है, जो कुछ है उसकी अता से है। वलो कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूँ होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली। अगर मैं ज़ाती तौर पर इल्म गैब को जान लेता अल्लाह की अता के बगैर तो मैं कितनी सारी भलाई इकट्ठी कर लेता, कितनी खैर इकट्ठी कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कोई बुराई भी ना पहुँचती, मुझे कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचती, कोई बुराई ना पहुँचती। ये कलाम बराहे अदब और तवाज़ु है, अल्लाह की बारगाह का अदब और उसकी बारगाह में आजिज़ी कि मालिक जो कुछ दिया हुआ है तेरा ही है, मैं ज़ाती तौर पर तो कुछ भी नहीं जानता, और अगर मैं जानता होता तो मैं तो कितनी खैर इकट्ठी कर लेता, कितनी भलाई इकट्ठी कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचती। तो मैं अपने ज़ात से गैब नहीं जानता, जो जानता हूँ वो अल्लाह की इत्तिला और उसकी अता से है। मुतरजम ने फरमाया कि भलाई जमा करना और बुराई ना पहुँचना उसी के इख्तियार में हो सकता है जो ज़ाती कुदरत रखे, और ज़ाती कुदरत वही रखेगा जिसका इल्म भी ज़ाती होगा, क्योंकि जिसकी एक सिफत ज़ाती है उसके तमाम सिफात ज़ाती। तो माना ये हुए अगर मुझे इल्म गैब जो है वो ज़ाती होता तो कुदरत भी ज़ाती होती और मैं भलाई जमा कर लेता और बुराई ना पहुँचने देता। भलाई से मुराद राहतें और कामयाबियाँ और दुश्मनों पर गलबा है, और बुराइयों से तंगी और तकलीफ़ और दुश्मनों का गालिब आना है। ये भी हो सकता है कि भलाई से मुराद सरकशों का फर्मा बरदार हो जाना,
और नाफरमानों का फर्मा बरदार हो जाना और काफिरों का ईमान ले आना और बुराई से बदबख्त लोगों का बावजूद दावत के महरूम रह जाना, तो हासिल कलाम ये होगा कि अगर मैं नफ़ा और नुकसान का ज़ाती इख्तियार रखता तो ए मुनाफिकीन और काफिरीन तुम सब को मोमिन कर डालता, मैं तुम सब को जो है वो ईमानदार बना देता और तुम्हारी कुफरी हालत देखने की तकलीफ़ मुझे न पहुँचती अगर मुझे ज़ाती इख्तियार होता। लेकिन ये सारा कुछ अल्लाह की अता से है और जितना उधर से अता होता है वो कुछ मेरे पास है और ज़ाती नहीं है। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, मैं तो यही डर और खुशी सुनाने वाला हूँ उन्हें जो ईमान रखते हैं, डर सुनाने वाला हूँ काफिरों को और मैं खुशखबरी भी सुनाने वाला हूँ और खुशियाँ जो है वो बांटने वाला हूँ ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखते हैं। अब इसमें दोनों किस्म की आयत पर जो है हमारा ईमान है कि अल्लाह ने जो अता किया है हम उसको भी मानते हैं और अल्लाह की अता से ही मानते हैं, चाहे इल्म गैब है चाहे हुजूर का इख्तियार है। अल्लाह ने जो अता किया है, जितना अता किया है हम उस पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की अता के बगैर हुजूर का इल्म गैब हम साबित नहीं करते, ना हुजूर का इख्तियार साबित करते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है। हमें अपने अकायद के बारे में बाखबर रहना चाहिए ताकि कोई भी हमारे अकायद पर हमला ना कर सके और हमें गुमराह करने की कोशिश ना कर सके। हुजूर का इल्म गैब, हुजूर का इख्तियार अल्लाह की अता से है, अपना ज़ाती नहीं है। इल्म गैब भी अताई है और इख्तियार भी अताई है, ज़ाती नहीं है।